Hi guys, in this video I am going to discuss about the regulation of respiration. The first is neural regulation. The neural regulation is done by two structures. One is medulla oblongata and another is pons, not pons powder. It is pons structure present in the brainstem. The first is medulla. The medulla is also known as respiratory system. You have to remember this क्योंकि मेडुला को एक नाम क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं. एग्जाम में पूछते हैं, इसको याद रखिए. सब उसमें इट हैज़ टू ग्रुप्स. वन इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड अनदर इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. मेडुला के दो ग्रुप हैं. जो सबसे पहला जो ग्रुप है, द फर्स्ट ग्रुप इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. द फंक्शन ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज टू कंट्रोल द नॉर्मल ब्रीदिंग. यानी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का काम क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करना. नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या आता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. नेक्स्ट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. द फंक्शन ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज टू कंट्रोल द फोर्स एक्सपायरेशन. यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं. व्हेन यू डू फोर्सफुल एक्सपायरेशन इट इज कंट्रोल बाय द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कब करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो. उसको कौन कंट्रोल करता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. Medulla oblongata has two group. One is dorsal respiratory group and another is ventral respiratory group. The function of dorsal respiratory group is to control the normal breathing, means inspiration and expiration, and the ventral respiratory group is to control the forceful expiration. The next is pons. Pons is also known as point in respiratory system. It is a very important point, you have to remember. The pons has two centers. One is apostatic center and another is pneumotaxic center. Apostatic center is to stimulate the inspiration and prolong it. apostatic center काम क्या है, तो इट प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करने का काम कौन करता है, अपोस्टिक सेंटर. ड्यूरिंग तुम क्या कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ड्यूरिंग योगा में आप इंस्पिरेशन एंड प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, वो कौन स्टिमुलेट करता है, अपोस्टिक सेंटर, यानी प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेशन. Apostatic center, pneumotaxic center. The function of pneumotaxic center is to inhibit the inspiration. यानी आप क्या प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन कर रहे हो, उसको आप क्या करना, इनिबिट करना. जो इनिबिट करने का काम किसका है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, इंस्पिरेशन को इनिबिट करेगा. इनिबिट करके क्या करेगा, उसका जो नॉर्मल रिदम है, पैटर्न में लेकर आकर क्या करेगा, जो एक्सपायरेशन को प्रमोट करेगा. न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम यह है कि इट इनिबिट्स द इंस्पिरेशन. These all are the point are includes in the regulation of respiration. In the next video I am going to discuss about the chemical regulation. In this video I am discuss about the neural regulation. Thank you guys. In this video I am going to discuss about the chemical regulation of respiration. In previous video I discussed about the neural regulation of respiration, but in this video I am going to discuss about the chemical regulation of respiration. The chemical regulation of respiration is done by two chemoreceptors. One is central chemoreceptor and another is peripheral chemoreceptor. First we are going to discuss about the central chemoreceptor. The central chemoreceptor is located in the medulla oblongata. It located in the medulla oblongata, just near to the respiratory center in the medulla. It is activated. ये जब कब एक्टिवेट होता है, when the body is in hypercapnia state. Hypercapnia means the excess carbon dioxide level in the blood. Next is respiratory acidosis. It means that when the hydrogen plus ion in the CSF is increased. Because of the hypercapnia and respiratory acidosis, the central chemoreceptor center is going to activated. When it is activated, what is then it affects? What is affects means it going to rise the increase the respiration rate. Because of increased respiration rate, the excess carbon dioxide level present in the blood is going to remove through the respiration. जब क्या रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो बॉडी में होता है वो कम होता है थ्रू दी क्या एक्सपिरेशन करने की वजह से. और जब हाइपरकैप्निया स्टेट जो अगर कम हो गया, यानी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन सीएसएफ में वो कम हो जाते हैं, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी रिजॉल्व हो जाता है और हाइपरकैप्निया भी रिजॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट इज पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर कहाँ लोकेटेड होता है, मीन्स इट लोकेटेड इन दी कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज. क्या कैरोटिक बॉडीज और आयोटिक बॉडीज में क्या ये मौजूद होता है. ये कब एक्टिवेट होता है, मतलब फर्स्ट इज हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया मीन्स कि बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है.
तो अगर ऑब्वियसली अगर हाइपोक्सिया हुआ तो क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, हाइपर कैप्निया होता है। और हाइपर कैप्निया हुआ तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, यानी एसिडोसिस होता है। ये तीनों चीज़ होने वजह से क्या होता है, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेटेड क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लांगेटा को कि तुम क्या करो, रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ को दोनों को बढ़ाओ। जब ये रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ बढ़ता है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ने से क्या जो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का बॉडी में इंटर करता है, तो क्या हाइपोक्सिया रिजॉल्व होता है। और क्या एक्सपायरेशन करने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या वो कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो गया यानी हाइड्रोजन प्लस आयन ब्लड में क्या वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी तीनों रिजॉल्व हो जाते हैं। हाइपोक्सिया भी रिजॉल्व होता है, हाइपर कैप्निया भी रिजॉल्व होता है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी रिजॉल्व हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट द केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू।